मारा आत्म मंदिરના નાના હૃદયા કમળમાં પ્યારો પ્રીતમ તું બેઠો હાલો હાલમ તું બેઠો પ્યારો પ્રીતમ તું બેઠો હાલો હાલમ તું બેઠો મારા રોમે વળી અનુપરમાણમાં મારા પ્રત્યેક શ્વાસમાં મારા સમગ્ર તંત્રમાં તને ભરી દેવા માટે દિલ આરે દુઆયા તને ભરી દેવા માટે દિલે આરજુયા મારા અંતરમાં મોકલા જેમ ગગનની ધરતી જુદા જેમ વામનને વીરાય તેમ જીવવું જગદીશ જીવનું કરવાતા એની કક્ષાએ જીવે છે સુખધામનું આપવા તારી પ્રીતિઓને રીતે એ પ્રીતિને હું પીછાડું એવી મતી તું આપજે એ પ્રીતિને હું પીછાડું એવી મતી તું આપજે મારા અંતર મોલના યા જુએ ક્યાં તું રામ જુએ ભાસે બીજું આકાશ તને તમે ભલે ઉદાસ નિરાકાર કરતી રહ્યો જીવની રીતે તેને સુખીઓ કરવા કાન પ્રભુના હતા સેવક કરવા તારો ઉદ્યમ આવી સુધ પડી જાય તારી કરુણા જોખાય તારી રીતિ નીતિ સમજાય એવી કૃપા વરસાવી દે મહાસાગર છે તું અમૃતનો મહાસાગર છે તું અમૃતનો એક બિંદુ આપી દે મારા અંતરમાં પ્રભુની દયાના સિંધુથી ગરજા ગ્રહણ કરી હોશિયાર થઈ ગુલામની સેવા સૌની કરી હવે જીવન ભર મારે તારા હોશિયાર જ રહેવું છે તને જે ગમે તે આપજે મારું ગમતું કાવડે દયા હવે રાખજે હારી રીતે જ વર્તાવજે
છે સંકલ્પ એનો પ્રલય તું કરજે તારી નિશ્ચિત છે યોજના તેમાં અમને હોમી દેજે તારી નિશ્ચિત છે યોજના તેમાં અમને હોમી દેજે મારા અંતરમાં હોલના રહે મારા મુસાવનો આનંદમાં તારા વડે જીવી જાણું તેવું સદા તારું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું તું ખાવજે હું છું કેવળ તારો પ્રકાશ તે અખંડ મનાવજે તું પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મા સ્વરૂપ તારા સંબંધે હું બ્રહ્મ આવી સુરુચિને જાણવી વર્તે તારા માર સેવક તારો એ ભાવના પડના સ્વામી મારો મારા અંતરમાં બોલના નાના હૃદય કર્મમાં મારા આત્મ મંદિરના નાના હૃદય મારો પિતા મધુબે હાલો વાલમ તુબે યારો પ્રીતમ તુબે હાલો વાલમ તુબે યારો પ્રીતમ તુબે હાલો વાલમ તુબે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 ધામ ધામી મુક્તો કી જય 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 મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય 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 જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેન રોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી પરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવાક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરેકાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નોમિ સતતમ અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલહરિવિજ્ઞાન દદતમ ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચનરૂપામુદયતમ હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં ગુણાતીતાનંદમ સકલગુરુમુડે મુનિવરમ વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં
दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा हय्ये तबर्यु मिठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हय्ये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के अनुग्रह से हम आज ये अस्खलित मंगल कृपा धारा विभाग 2 प्रकरण 3 और पेज नंबर 197 से हम आज का सत्संग शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि काका जी महाराज कह रहे हैं कि गोपालानंद स्वामी ने बहुत जोर लगाया तो उसके वक्त 6 मुक्त बने, उनके सम्मुख 6 मुक्त हो गए। और काका जी महाराज कहते हैं कि आज हमने सहेज छूटा दौर रख दिया और सभी को चांस दिया, तब भी 6 तो सदगुरु बन गए। और आगे कहते हैं सब कुछ सभी का रंग तो लगता है पर ये एक सत्पुरुष का ही रंग नहीं लगता है। हरे। और कहते हैं अब आगे पढ़ो स्वामी की बात, प्रकरण 4 की 144वीं बात। तो हेमंत भाई मर्चेंट कहते हैं महाराज हमें राजा बनाकर 3 कामदार सामने रख दिए, मतलब कि 3 सेवक उनके रख दिए। मतलब ये कौन कह रहा है? ये गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि महाराज ने हमें राजा बना दिया और सामने 3 जो सेवक है वो खड़े कर दिए। उसमें से पहले गोपालानंद, दूसरे अखंडानंद ब्रह्मचारी
और तीसरे परमानंद स्वामी, वो 3 आपके सेवक। उस तरह से महाराज ने हमें बताया। अब काका जी कहते हैं कि गोपालानंद स्वामी जूनागढ़ में बातें करने जाते थे और लखपति और करोड़पति को ही वो उपदेश देते थे, और वो सामने वाला एक ही शब्द बोलता था, 5 करोड़। हो गया, बात खलास हो गई, आप क्या आगे बोलने वाले हो। और गुणातीतानंद स्वामी उस वक्त में छुपे रहे, उनको नभा लिया, चला लिया, तब ये ज्ञान जो है वो बहुत कठिनाई से हाथ में आया है। तब बापा बोलने लगी, भगत जी, जगा स्वामी जीवा तमाम को बना देता हूँ। शास्त्री महाराज और योगी जी महाराज ने तत्व से जो पहचानता हो, उनके भाषा की उनको ही खबर पड़ती है, मतलब कि उनको ही पता चलता है। हरिशंकर भाई पूछते ही रह गए अंत तलक, धामा जता तलक। हाँ, अरे हेमंत भाई मर्चेंट बोलते हैं कि गोपालानंद स्वामी का ज्ञान तीनों ने प्राप्त किया और 6 मुक्त हो गए। तो यहाँ पे कहते हैं काका जी महाराज कि गोपालानंद स्वामी का ज्ञान कितने लोगों ने प्राप्त किया, तो कैसे 3। इतना जोर लगाया तो बहुत वरघोड़े वगैरह सब निकाले, बहुत सारे पर्चे भी दिखाए, और उनका सेवक को धोतिया भी ब्रह्मचर्यवत पालन करते हैं। तब 3 ज्ञान को प्राप्त हुए और 6 मुक्त बने। हाँ, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बहुत धम पछाड़ा करते हैं तो ही जो मुक्त है वो ये प्रकृति से परे उठ सकते हैं, और ये प्रकृति से परे उठने के लिए तो संपूर्ण समर्पण चाहिए, और उसके बिना वो शक्य नहीं। क्योंकि बहुत लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं, मैं कुछ ज्ञान मेरे पास में है, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान, वो सवेरे ज्ञान लेकर आते हैं, और जो ज्ञान लेकर आते हैं वो बहुत कम पा सकते हैं, और जो महाअज्ञानी बन के समर्पित हो जाते हैं वो बहुत कुछ पा लेते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो है बहुत रहस्य से भरा हुआ है, और उस समय में जो प्रचलित ऐसे जो कृष्ण भगवान की जो भक्ति थी, उससे परे उठना वो नामुमकिन जैसा था। और उस वक्त में गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, जागा भगत और भगत जी महाराज ने बहुत 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 दाखड़ा किया। शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज ने इतने भयंकर दाखड़ा किया कि वो भक्तों के सेवक बन के उनको रहना पड़ा 40-40 साल तक। तब भी वो उस तरह से रहे, और तभी ही ये अक्षर पुरुषोत्तम का सूर्य हमारे पृथ्वी के ऊपर उदित हो पाया। वरना अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का जो सूर्य उदय जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर उदित ही नहीं हो पाता था। तो ये बात यहाँ पे काका जी महाराज हम सबको बताना चाहते हैं। हेमंत भाई मर्चेंट आगे बोलते हैं, 12 महीना में 1 महीना सभी को जूनागढ़ रहना, ऐसा महाराज ने आज्ञा करी। तो काका जी कहते हैं, एक के एक को, तमाम को वर्षों वर्ष 1 महीना करवो जूनागढ़ निवास रही, बहुत कठिन बात थी, क्योंकि अहम ही छोड़ने का था। बहुत मजे की बात है। हाँ, सच्चा स्वतंत्रता, और वो विदेही मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त। अरे मतलब कि देह से परे चले जाते हैं, जीते जी विदेही हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ये 1 महीने का सत्संग गुणातीतानंद स्वामी उन सबको कराते थे। हेमंत भाई मर्चेंट बोलते हैं, हमारे साथ में जो जूनागढ़ आते हैं उनको तो 100 बार मिलने का महाराज ने कहा है। 100 जन्म की कसर हम 1 जन्म में टाल देंगे। इस तरह से महाराज जूनागढ़ के जमान हुए, मतलब कि वो बांहेधरी उन्होंने दी, और भगवान के माध्यम से ही काम होता है, और वही कार्य साधु से भी होता है। गोपालानंद स्वामी कहते हैं, अब बड़ौदा के सामने दृष्टि न होनी चाहिए।
काका जी कहते हैं अरे ना होए, बड़ौदा के सामने न होए। और तत्पश्चात अंत में सबको पता चला लास्ट मोमेंट के अब तो जूनागढ़ का जोगी के सामने ही या तो महाराज के सामने ही नो मोर। पहले थी कहना था ना हे भाई हरे, मतलब कि ये बात कहने के लिए गोपालानंद स्वामी को कितने साल निकल गए और तब जाके उन्होंने बताया कि अभी बड़ौदा के सामने दृष्टि नहीं करनी पर जूनागढ़ के सामने दृष्टि करनी, मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी के सामने दृष्टि करनी है। और ये लास्ट मोमेंट में जो ये बात कही तो या तो जूनागढ़ के जोगी के सामने मतलब गुणातीतानंद के सामने या फिर महाराज के सामने नो मोर। और काका जी कहते हैं कि ये बात यदि पहले से बताते तो बहुत कुछ हो सकता था, पर हरे महाराज की इच्छा। हेमंत मचत कहते हैं अब तो जूनागढ़ जहाँ महाराज का अक्षरधाम वही गुणातीतानंद स्वामी और वहाँ दृष्टि होएगी। काका जी कहते हैं कि उन्होंने हम बोलते हैं पर मानो तो खुश हो जाते हैं, अरे गप्पा मारते हैं कुछ के कुछ। गुणातीतानंद स्वामी 2-3 बार कहे इसलिए वो पक्का सूत्र कहा जाता है अरे। हेमंत भाई मर्चेंट कहते हैं तत्पश्चात महाराज ने मुझे कहा जे साधु तो हम 5 रखेंगे। तत्पश्चात 200 तलक कहा और मुक्तानंद स्वामी के आगे हमें बिठा दिया। काका जी कहते हैं क्या कहा, ये बात समझ में आती है, क्या कहा, ये बात हमें आती है हरे। हेमंत मर्चेंट कहते हैं कैसे कैसे को पार किया, जड़ भरत कहकर भी महाराज को धाबड़ा तो उड़ाड़ी दिया, मतलब कि धाबड़ा ही दान किया। काका जी कहते हैं ऐसी बातें तो बहुत है। वो कौन सी बात बहुत है कि यदि कोई दिव्य लगता है, कोई बहुत बड़ा लगता है, कोई बड़ा ज्ञानी लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त के लोग क्या करते थे कि एक कंबल लेके उनका सम्मान कर देते थे और सम्मान हो गया तो तेरा मेरा संबंध कुछ नहीं, बाय बाय, ऐसा संबंध था। तो वो बात यहाँ पे करते हैं कि उन सबको महाराज ने क्या कहा, जड़ भरत कहा कि उनका इतना ही संबंध था कि कुछ अच्छा लगा, दिल खुश हो गया तो अपना एक कंबल दान में उनको दे दिया, बहुमान कर लिया, सम्मान कर लिया, हो कर लिया, तालियां बजा दिया, बात खत्म। कुछ भी ज्ञान घर पे लेके नहीं जाते थे, वैसी स्थिति थी। और ऐसे जड़ भरत लोगों को भी कैसे कैसे को सबको पार किया, मतलब भव सिंधु पार किया, वो बात यहाँ पे काका जी महाराज उठा रहे हैं। ऐसी तो बहुत बात है, जीव तो ऐसा बलवान हो जाता है, भगवान के धारक बनते ही जाते हैं। हाँ ये बात मैं जब पहले 52 में कहता था ज्योति बहन को और हंसा बहन को, मतलब 1952 में ये बात उन्होंने ज्योति बहन और हंसा बहन को बताई थी। उनको लगता था कि काका हमको भूल गई, कदाच भूल भी गई, स्वाभाविक है। मुझे कहते हैं काका हमें कैसा बनाओगे। मैंने कहा कैसा, आप दृष्टि करो और ये जगत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ज्योति बहन को कहा आपको परदेश जाना पड़ेगा, आपको देख के सबको शांति हो जाएगी। आज भी हम तत्व से उसके 5 वचनामृत की बात करते हैं। तत्व के वजह से स्वरूप प्रकटपणे और तत्व से प्रत्यक्षपणे, तत्व से ही जिसका मन सहज अच्छे और बुरे 5 विषय में वो बहता ही नहीं है, स्थिर रहता है। देखा अच्छे और बुरे, पुष्पहाराय सर्पाय, वो उसका एक लक्षण है। उसको तत्व से पहचाना हो तो ही ऐसा हम बन सकते हैं। उसको हार पहनाया कि रिंगना लगाओ, मैंने मेरे जैसे है ऐसा समझने की बात करता हूँ, इतना डिफरेंस हो जाएगा, मतलब कि इतना फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने तत्व से पहचाना इसलिए मनुष्य भाव नहीं रहता है। और हमने कहा कि दिव्य माना है, पर पोते दिव्य मान लेते हैं तो ही अन्य को दिव्य बना सकते हैं।
ये बात बहुत अलग है। और दीवा से ही दिया प्रज्वलित होता है, पारस से ही पारस को बनाया जा सकता है। तो ऐसा वारसा जो है बापा हमको देखे गए, बहुत अद्भुत बात है। ऐसे 2-5 तैयार हो जाएंगे तो ख्याल आ जाएगा बापा ने हमें ऐसा सम्यक निर्दोष माना था। तो वो एक खुमारी है, बहुत भव्य और जबरदस्त वस्तु बनने वाली है। आप समझ लेना, हमें ये पक्का कर लेना है, दृढ़ता करो। एक लेसन को मतलब कि एक पाठ को सीख के यहाँ से जाओ और तत्पश्चात उसको घुटते रहना, मतलब कि रिपीट करते रहना, उसको बारंबार रिपीट करते रहना। और तत्पश्चात फिर से हम वापस यहाँ पे ही पंचगिनी आकर तब मैं आपकी परीक्षा लूंगा। अब इस पैराग्राफ में काका जी महाराज ने ज्योतिबेन को कहा कि आपको परदेश जाना पड़ेगा। और ज्योतिबेन ने क्या पूछा था कि आप हमें कैसे बनाओगे? तो उन्होंने कहा था कैसा, कि ऐसा दृष्टि करो कि उनका जगत ही विलुप्त हो जाए। तो ये जो ज्योतिबेन है उनका अनुग्रह मेरे जीवन में बहुत रहा है। मैं जब 2004 से 2010 तक गणेशपुरी गया था और समाधि में मेरा आत्मा जो मेरे शरीर से बाहर निकलकर लोकांतर में जाता था, तो ये देह की रक्षा ज्योतिबेन ने ही की थी। ज्योतिबेन इतने पावरफुल थे कि वहाँ की जितनी भी शक्तियाँ थी वो सभी शक्तियाँ उनके वजह से मेरे में प्रवेश नहीं कर सकती थी। और उन्हीं के वजह से मेरा जो आत्मा है वो मेरे सद्गुरु के साथ में लोकांतर की यात्रा कर सकता था। तो ऐसे पावरफुल ज्योतिबेन थे। हालांकि ज्योतिबेन की और मेरी ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं हुई थी, पर वो स्वयं ज्योतिबेन, मैं जिस फ्लैट में रहता था, मैं जिस स्थान पे रहता था, वहाँ पे 203 बार आके गए थे। और जिस वक्त मैं मुंबई में रहता था उसी वक्त वो वहाँ पे आते थे और वहाँ पे सभी बहनों की टूर के लिए वो आते थे और कहते थे ये भूमि किसकी भूमि? परब्रह्म की भूमि। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि नित्यानंद बाबा के जो शिष्य थे मुक्तानंद बाबा, वो मुक्तानंद बाबा की योगी जी महाराज के साथ में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और वो कई बार कई प्रसंगों में एक साथ में एक मंच पर साथ में बैठते थे। और उनके वजह से काका जी महाराज की भी मुक्तानंद बाबा से बहुत गहरी पहचान थी। और उस पहचान के वजह से ही जो आज के जो सद्गुरु है स्वामी श्री चिद्विलासानंद है, उनको भी पता है कि जो योगी बाबा है उसके जैसे कोई योगी इस पृथ्वी पे भूतल पे है ही नहीं। और इसीलिए उन्होंने उस योगी बाबा का जो तैल चित्र है वो सेंट्रल हॉल के दीवार पे आज भी लगाया हुआ। तो ऐसा महिमा जो ज्योतिबेन का, तो ज्योतिबेन ने वहां पे ही दर्शन दिए थे, मतलब दिव्य रूप से दर्शन दिए थे और मेरे तन की रक्षा की थी उन्होंने। और तब जाके लोकांतर में जाना संभवित हुआ था। तो ऐसे पावरफुल ज्योतिबेन थे और ऐसे ज्योतिबेन को काका जी ने बनाया। कैसे? तो के महात्मा सफर, महात्मा जो हमें मिले हैं उनका महात्मा क्या है, वो जैसा है वैसा तत्व से पहचान कराकर वो ज्योतिबेन ने पहचाना था। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि ज्योत से ज्योत प्रगटावे, पारस से पारस प्रगटावे, ऐसी हस्ती ज्योतिबेन थे। वो बात यहाँ पे काका जी महाराज बता रहे हैं। मतलब कि ज्योतिबेन की वो अभिप्सा थी कि ऐसे हम बन जाए और ऐसे उसी के लिए उनको नाम भी ज्योतिबेन दिया। दिया का दूसरा नाम क्या है? ज्योति। तो इसलिए उनका नाम ज्योतिबेन कर दिया कि ज्योत से ज्योत उन्होंने जगा दिया। और गणेशपुरी में जो सदगुरु की जो आरती उतारते हैं उसकी प्रार्थना ही यही है, ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। तो वो सारी बातें जो है वो गणेशपुरी से ही आई है और उनके संबंध से ही ये सारी बातें यहाँ पे काका जी महाराज कर रहे हैं। और पंचगिनी में से शिविर करते थे, उसी तरह काका जी महाराज ने गणेशपुरी में एक बेंगलोर वाला बिल्डिंग है और वहाँ पे ही एक बहुत बड़ा हॉल है फर्स्ट फ्लोर पे, और उसी में ही सारी शिविर वहाँ पे उन्होंने 3 दिन से 5 दिन या 7 दिन की शिविर गणेशपुरी में वहाँ ही करी थी। तो उसके वजह से उनका संबंध जो है वो समझ में आया। हालांकि मैंने प्रत्यक्ष रूप में ज्योतिबेन को उस वक्त नहीं देखा था,
पर दिव्य रूप से वो आते थे और वो मेरी रक्षा करते थे। और उनका अनुग्रह मुझे पता है कि जब तक ज्योतिबेन थे तब तक मेरा बाल बांका नहीं हुआ था। और उसके पश्चात, ज्योतिबेन के पश्चात, जो मेरा जो टेक ओवर है, सुरक्षा का जो टेक ओवर है, वो प्रेमबेन ने लिया था। और प्रेमबेन के साथ साथ में जब प्रेमबेन थोड़े बीमार हो गए और चल बसे, तो वो भार किसने ले लिया? जसूबा ने ले लिया। और जसूबा ने आज की डेट में भी मेरी सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो अपने ऊपर लिया है। क्यों? क्योंकि संबंध किसका था? ज्योतिबेन का संबंध था। तो उस संबंध के वजह से, वो काका जी और पप्पा जी के संबंध के वजह से, वो तत्व से पहचानने के वजह से, उस भूमि में ऐसा आदर करके, ऐसी घनिष्ठ भजन भक्ति करने के वजह से आज भी वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत ही धन्यता अपने आप को मैं प्राप्त करता हूँ। उनके संबंध से मुझे बहुत 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 ही फायदा होता है। और मैं निश्चिंत होकर मैं आज भी प्रभु की भक्ति जो है वो अदा कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। तत्व से पहचानना वो वचनामृत में कहाँ पे लिखा है, हमें चर्चा करनी पड़ेगी। मूल बात यही है। आप किसके आज शाम को इस बात के ऊपर बात करेंगे। 5 वचनामृत है उसके, जिसके वजह से ये जो जगत है वो हमारा बाप है। ये आपका अहित कैसे करेगा, इस पल में जो चाहो वो कर सके, ऐसा है। 11 इल्काब तो ऐसे के ऐसे हमें मिल गए आपको। और तत्पश्चात ये स्थिति की बात है, मानो कि कैसे भी और कोई भी हो, स्वामीनारायण का अल्प संबंध वाला हो, तो भी उसका गुण लेना है। और ये बात ज्योतिबेन में थी। मैं नया था, मैं किसी को, भरत भाई के सिवा किसी को जानता भी नहीं था। फिर भी अल्प संबंध वाले को सिर का मुकुट मानकर उन्होंने मेरी उन्नति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं भी की और मेरी रक्षा भी की। तो उसी तरह से उन्होंने वो गुण लिया था कि ये भरत भाई के संबंधी है। और स्वामीनारायण का सब भी मुझे मालूम नहीं था उस वक्त, तो सिर्फ राजू भाई भट्ट को और भरत भाई को मिला था। पर हमें तो उसका जो अच्छा हो वो बात नहीं करते हैं और अन्य ही चर्चा करते रहते हैं। कोई तो ऊपर से ही उल्टी प्रवाह, मतलब कि गलत प्रवाह में लेके जाते हैं। और ये सब हमें दबा देना चाहिए। उसका दोष हो तो भी हमें दबा देना चाहिए, गुणज कहना चाहिए। हमें धीरे धीरे से ये समझना पड़ेगा, उसका भी हमारा ही है। महाराज ऐसा है और वहाँ पे पोपाबाई का राज नहीं चलता है। यहाँ पे पोपाबाई का राज नहीं चलता है, ऐसा क्यों कहा काका जी महाराज ने? क्योंकि ये मार्ग शूरवीरों का मार्ग है। और जो शूरवीरों का मार्ग है उसको हृदय में प्रवेश करना ही पड़ेगा। जो हृदय कमल में विराजित ऐसे दिव्य मूर्ति का ध्यान जिसको करना है, उसको सारा संसार का त्याग करना पड़ेगा। उसको देह से परे, इंद्रियों से परे और अंतःकरण से परे उठना ही पड़ेगा, तो ही हृदय कमल के जो द्वार है वो खुलते हैं। वरना जिसकी बाह्य दृष्टि है उसके लिए तो ये बात असंभव है। जिसकी अंतर्दृष्टि है, जो देह, इंद्रिय और अंतःकरण से परे उठने के लिए ध्यान, मेडिटेशन या तो हृदय कमल की साधना करता है और उधर ही उनको ढूंढने की कोशिश करता है, ऐसे शूरवीर ही वहां पे पहुंच सकते हैं और उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी की बाह्य दृष्टि है, या तो यदि कोई कृष्ण को भी भजता है या तो कोई साईं को भी भजता है, फिर भी उसका गुण ही देखना। और धीरे धीरे हमें ये बात समझना है कि ये जो मुमुक्षु है वो हमारा ही है। महाराज ऐसा है और वहाँ पे पोपाबाई का राज नहीं चलने वाला। मतलब कि हमें तो सभी से परे उठना है, मूल प्रकृति पुरुष से भी परे उठना है। और ये बात शूरवीर ही कर सकते हैं। इसीलिए ये अक्षर पुरुषोत्तम और खास करके मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम में इसलिए बहुत कम शिष्य है, वहाँ पे झुंड नहीं है।
वहां पे झुंड नहीं है, पर ऐसे बहुत जूझ जो है, जो सूरवीर है, उनको ही भरत भाई वसी भाई ने जमा किए हैं। आप उनके भक्तों की माथाकूट में पड़ जाओगे, ईर्षा में पड़ जाओगे और मुर्दे के माफिक आपको कहाँ भी फेंक देंगे। आपका क्या काम निमित्त बनने का कि हमें कौन सा काम और किस कमतरता की बात करनी है, ये नकामी बात जो फालतू की बात है उसको छोड़ो। एक बात चलती हो तो हमें समझ लेना है और ऊपर से उसका महिमा समझ में आए, दिव्यता समझ में आए, ये बहुत कठिन है। मैं तो खुद इस बाबा के साथ में गोंडल ही देखा था, धमाल धमाल चाले, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो ऐसा दिव्य भाव वाला और हेत की आत्मबुद्धि वाले है, पर जहाँ पे मूल वृत्ति को स्पर्श किया, इसलिए एक 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 के एक खलास, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े थे वो सब अर्ध पागल जैसे हो जाते थे, मतलब कि धिंगा मस्ती पे चढ़ जाते थे। ऐसा करके और तत्पश्चात अन्य बात करके तो माथाकूट हो जाएगी, पर ये एक उसकी जो प्रसन्नता के बिना बनना वो तो शक्य ही नहीं है। और वहाँ पे उसको तत्व से पहचानना पड़ेगा, क्या तो ब्रह्मरूप मानकर ही वरतना पड़ेगा, और तो ही ब्रह्म का गुण आने वाला है। तब काकाजी महाराज ने यहाँ पे इतनी गहन बात कही है और इतनी लेंथी बात कही है, इतने सारे पॉइंट्स मुद्दे कहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि काकाजी महाराज हमें क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मुद्दे की बात करते करते मुझे लगता है ये 25वां मुद्दा आ गया उनका, और वो मुद्दे को बदली करते 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 वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमारी उन्नति कैसे हो उसकी बात कर रहे हैं, और वो एक साथ कर रहे हैं। इसलिए हमें वो बात, मतलब कि उसकी जो लिंक है वो हमें हाथ में नहीं आ रही है, और ऐसे लगते हैं कि काकाजी महाराज कभी ये मुद्दे की बात करते हैं तो कभी वो मुद्दे की बात करते हैं। तो आपके जीव का जो गुण रहता है तब तलक सूरत भाव नहीं रहेगा, स्वार्थ होएगा, खप होएगा, गरज होएगा, तब रहेगा। व्यवहार में रहता है, नहीं रहता है, ये तत्व से, यानी कि मुझे कोई भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का, समझन का हो तो भी नहीं, बस ऐसा मुझे आपको बनाना है। कैसा बनाना है कि तत्व से पहचाने, मन में कोई भेदभाव न हो, समझन भी व्यवस्थित हो, मुझे आपको ऐसा बनाना है तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। सी द पॉइंट, मतलब मुद्दे को देखो। अब आप खुद ब खुद आप छिपरू लेने वाले हो, मतलब कि उसका तत्व ग्रहण करने वाले हो, पर जब तक आप डुबकी नहीं लगाओगे तब तक अनुभव नहीं होने वाला है। यदि एक बार तो डुबकी लगानी ही पड़ेगी। यहाँ पे डुबकी लगानी पड़ेगी मतलब कौन सी बात कर रहे हैं कि हृदय कमल में विराजित उस मूर्ति को ढूंढने की कोशिश आंख बंद करके करनी ही पड़ेगी। चाहे आपको श्वासोश्वास चलाना आता हो या नहीं आता हो, चाहे आपको ध्यान या मेडिटेशन करना आता हो या नहीं आता हो, हृदय कमल में विराजित जो मूर्ति है वो आंख बंद करके उसको देखने की चेष्टा तो आपको करनी ही पड़ेगी, मतलब कि डुबकी तो लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे उदाहरण देते हैं वो भगवान दास। वो कौन? परम भक्त भगवान दास भाई बारोट, थाना वाले। वो बात करते हैं तो मैनेजरों को हास हो जाती है। कोक निष्ठा वाला तो है, भले ही ड्राइवर है, वो पहला भंसाली कहते हैं कि ये तो देव पुरुष है, उसको ड्राइवर नहीं कह सकते, तो देव पुरुष के गुरुजी कैसा होंगे? ये है वर्तन। तो हमें कैसा बरतना है वो बात करती है। निष्ठा ने काम किया, मैं तो था नहीं, इसलिए भगवान दास को कहा कि तू ये मेरे लड़के को सर पे हाथ रख और उनको अच्छा हो जाएगा, तेरे पास में भगवान है। यदि ये बड़ा है कि भंसाली बड़ा है, पर ये कैसे थे कि ऐसे कहे कि ना मेरे से हाथ नहीं रखा जाएगा। काका जी को मैं जब आएंगे तब बात
करूँगा और वो ही आएंगे। भंसाली कहते ना ना, उनको तकलीफ नहीं दे सकते हैं। भगवदास कहे कि मैं आपको लेके जाऊंगा, तो वो लड़का जो है बच जाएगा। तो उसको चोट लग गई, ये हड्डी तो टूट गई है, ये सब। हाँ, एक ना एक लड़का वो बेबाकड़ा हो गया। कौन? भंसाली, उस छोकर वो बच्चे का बाप। मैं गया तो कहते हैं अरे काका जी आप आए, अरे रे ओहो हो, ये भगवान दास का वर्तन सो अन्य ब्रह्मचर्य व्रत उनका पालन किया और उपवास किया। ये हमें भगवान को रखना नहीं और अन्य माथा कूट तो हम करते ही रहते हैं। इसीलिए ये बात कहनी है। वहाँ पे मैं नहीं कहता कि पहला दिव्य मानो, पर महाराज को तो नारायण जैसा है ऐसा तो खरेखर पहचानो। उसके बगैर कैसे भी तप त्याग योग व्रत दान करते हो, पर ऐसे सत्पुरुष तो चाहिए और चाहिए। और उसको अभिप्राय के जानने वाले भी चाहिए। अभिप्राय की समझन नहीं होगी, इसीलिए पहले हम डुबकी खाएंगे, लक्ष्यार्थ करेंगे और आप खुद ही स्वयं ही आपको उसके सर्वोपरिपणा का अनुभव हो जाएगा। खलास, तत्पश्चात बात पूरी हो गई। उसको 2-5 उपाय है, वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज कह रहे हैं। काकाजी महाराज हमें डुबकी मारने की बात कर रहे हैं और किस भाव से डुबकी मारनी है वो बात भी कह रहे हैं। जैसा है ऐसा भगवान को संत को पहचानो। अब इसमें कहाँ पे पर्सनल कोई बात आ गई और ऐसा कराने वाला इस वक्त तो स्वामी जी है, पप्पा जी है, काका जी है। एक दैवत आ गया है, हम खड़े हो जाते हैं। शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज ने काम किया है संप्रदाय के सामने, ऐसे के वैसे उन्होंने किए होंगे। बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। समाज में काम किया, अब 2-5 जन ऐसे तैयार करना है जो हमें छलांग मार सके। मुझे सभी जगह पे छलांग मारने की आदत है। सीढ़ी के मार्ग में भी क्या हम अटक जाते हैं। ये तो सीधा ही सीधा, बस ऐसी ही बात है। इसीलिए वाणी बंद हो जाएगी। महाराज महाराज महाराज, खलास। वही हो, वही की वो, वही की वो, वही की वही शक्ति, ब्राह्मी शक्ति ही कार्य करेगी। जबरदस्त। देखो ये मुंबई का संपूर्ण युवक मंडल कितना जाग रहा है। आप 2-5 जना तैयार हो तो अन्य की घसारा की बात क्या कहेंगे, मतलब कि अन्य की धगस की बात हम क्या करेंगे। रुचि के हिसाब से आपने नक्की किया हो, उसके हिसाब से करते रहना। तत्पश्चात उसका पावर कार्य करेगा। आप कहो ना हमें छिपला दो, तो मैं कहूँगा कि कोहिनूर हीरा पड़ा है नहीं, और ना हमें छिपला ही दो। ऐसा कहते हैं कि वो हीरा पछी आने वाले जन्म में लेंगे। ऐसी एकांतिकपणा की दुर्लभ में दुर्लभ बात है। आत्मनिरीक्षण होता है, उसमें भी एक दर्शन होएगा। आप कौन, ये क्या काम कर रहे हो, क्या करना है, क्या करने के लिए आए हैं। कर्ता हर्ता सर्वोपरि साकार दिव्य महाराज तो है ही, और ये साक्षी भाव से बरतने की आदत पाड़नी है। तू ही सर्वोपरि, काल का, कर्म का, माया का। किसका सर्वोपरि? काल का, कर्म का और माया का, प्रकृति का, सभी का नियंता, प्रेरक, प्रवर्तक। आप देखो पहले प्रकरण की आखिरी बात, वहां पे अभी भी सांख्य और योग होता है। तत्पश्चात सर्वोपरिपणा की बात, सांख्य और योग कर ये भी ज्यादा सर्वोपरिपणा बढ़ जाता है। और उसके पश्चात 1-2 बात अब हम पढ़ेंगे। पहले प्रकरण की आखिरी बात, उसमें मैं कौन, प्रभु कौन, वो कैसे है, ये जान बना रखना है। कथा करे, कीर्तन करे, बातें करे, सेवा करे, साथ में रहे, सब कुछ करे, पर देह में रहने वाला ऐसा मैं आत्मा हूँ, अक्षर हूँ, ब्रह्म हूँ, चेतन तत्व हूँ, नित्य तत्व हूँ, निर्गुण तत्व हूँ, इटर्नल तत्व हूँ। वासना और स्वभाव की वजह से यहाँ पे आके उनके चरणों में पड़ा हूँ। वृत्ति पर एक संसार खड़ा किया है, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। करोड़ों जन्मों मैंने छोड़ दिए, आज मालिक मिल गए, आज प्रभु मिल गए। वो कैसे है?
मेरे जीव में अखंड विराजित है, ऐसे है, वो सर्वोपरि है, सभी कारणों के कारण है, ऐसे ये प्रत्यक्ष मुझे मिले हैं और उसके माध्यम से महाराज ऐसे के ऐसे ही है। इसमें सांख्य और योग आ गया। अब ये करते करते महाराज को साकार मानना, कर्ता भी मानना और ये करते करते सर्वोपरि भी मान लेना, वो सबसे अधिक है। तो अन्य का अभाव आएगा नहीं, किसी का भी नहीं आएगा। वो पल में वो चाहे ते करे, नहीं तो नित्यानंद स्वामी को ऐसा हुआ था। अब महाराज गेहूं दलने के लिए वेश्या का भी कल्याण करने, उसमें ऐसा क्या हो सकता है क्या? जो सर्वोपरि हो तो चाहे वो कर सकते हैं, किसी को भी उसको वो तो राजगादी के बैठा सकते हैं। महाराज में नहीं देखने का और सर्वोपरि आपने मान लिया हो, तत्पश्चात ही दिव्यता रहेगी। उनके महात्म्य सहित निश्चय हो तो ही दिव्यता रहेगी। तो यहाँ पे यही सेंट्रल पॉइंट है कि दिव्यता कभी रहेगी कि महात्मा सहित निश्चय हो तो ही दिव्यता रहेगी, वरना तो हलक डोलक हो जाएगा और हम इस रास्ते से ही हट जाएंगे, गिर जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि महात्मा सहित निश्चय हो तो ही दिव्यता रहेगी। और दिव्यता के साथ साथ में वो सभी सर्वोपरि कारणों के कारण और प्रत्यक्ष मुझे मिले हैं, उसके थकी महाराज ऐसे के वैसे ही है। जो अक्षरधाम में है वही यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वही अक्षरधाम में है, वो बात आप मान लेना। देखो, आज एक दो बात स्वामी की हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। शास्त्री महाराज और जोगी जी महाराज की हाजिरी में ही हमें तत्व से अनुभव नहीं किया। ये कौन है मानव स्वरूप में? उन्होंने ही भगवान को रोम रोम में सभी प्रकार से उन्होंने धारण किया है। वो भगवान कैसा है, कोटि जन्म की कसर आज निकाल देने वाले हैं ऐसे ही साधु, क्योंकि महाराज रोम रोम में है। करोड़ों जन्मों की वासना को अब घड़ी वो निकाल दे ऐसे ही साधु है। ऐसे ये गुणातीत पुरुष ऐसा का ऐसा आज आपको भी मिला हुआ है, पर आप उसका अनुभव करते ही नहीं हो, डुबकी लगाते ही नहीं हो, टोटल लय होकर वो कुछ उसके लिए मांगने भी नहीं करते, नहीं तो प्रकाश हो जाएगा। कौन से दिन सत्संग मिला और प्रयत्न किया और आपको स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ? बाकी सब कुछ देखते हो, जानते हो, अनुभव करते हो। इस बापा को तत्व से पहचानो और वही ब्रह्म विद्या है कि हमें जो गुणातीत सत्पुरुष मिले हैं उनको ही तत्व से पहचान लिया और वही ब्रह्म विद्या है। ये महिमा का थोड़े समय के लिए आप चिंतन मनन करना, जो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं। आपने बाबा को देखा, जाना, सुना और उनकी रिकॉर्ड भी सुनी, उनके सूत्र भी सुने, महाराज के, स्वामी के। ज्ञान तो है, अब क्रिया में हमें झुकना है, उसके कार्य में तर्क वितर्क नहीं करना है। ये जेतलपुर की वेश्या का आत्यंतिक कल्याण नित्यानंद स्वामी जैसा, अरे ऐसा कुछ हो सकता है? बापा कहे ये गुंडली में नहाते हैं, उसका आत्यंतिक कल्याण। बोलो, वो वेश्या ने तो फिर भी पूरी रात में वो गेहूं को उसका दलने का कार्य किया था और हाथ में छाले हो गए। पर यहाँ पे तो योगी बापा क्या कहते हैं, वो सब छोड़ो, सिर्फ गोंडली नदी में स्नान किया, उसका आत्यंतिक कल्याण। बोलो, इतना आसान कर दिया। वो जीव को मानने में नहीं आता है और मानने में नहीं आता है उतनी निश्चयता में, महात्मा सहित निश्चयता की कमी बताई है। उसमें सब संशय करेंगे। जो सर्वोपरिपना आपने माना हो तो इसी पल में चाहे वो कर सकते हैं। उसके मर्जी के बिना जो सूखा पत्ता है वो भी हलने के लिए समर्थ नहीं है। ये आपका बाप है, मालिक है। उनको कैसी रीत से आपका नुकसान करेंगे, वो क्यों अहित करेंगे? 15-20 मिनट बैठकर पुकार करो और उसका जो पसंदीदा है बस खाली वो करने के लिए संकल्प करना। भले न होए, वो समझेंगे कि ये मेरा है, मुझे पहचानता है।
ये बात बड़े पुरुष की कृपा से ही समझ में आएगी। तो एक के ऊपर कृपा करे और अन्य के ऊपर कृपा न करे, ऐसा पक्षपात उनमें है क्या? पर दया सभी के ऊपर। मैं बहुत बार कहता हूँ, कृपा अनन्य भाव हो उसके पर, आप उसके ही हो तो कृपा करेंगे, न हो तो कुछ रास्ते जाने वाले को वो वारसा दे देंगे क्या? वो तो गांडे घेले को, पागल को भी कहते हैं किसके, छछुंदर भी किसके। तो ये बात अब मानने में आ जाए तो ऐसा महिमा है, तो 5 मिनट उसको धारण करके रखो, और उसको धारण करने के पश्चात वो सोचते हैं कि उसको लेकर आप सजातीय यानी कि ब्रह्मरूप हो गई। वो आपके प्राण के साक्षी है और आप एक हो। प्रभु मैं आपका, मैं और तू एक, और आप पर के पर, हमारे देह के नियंता हो, प्राण के प्रेरक हो, आप सर्वोपरि हो, प्रकट हो, काका थकी मूर्तिमान मिले हो, हमारी निष्ठा की रक्षा करना, हमारा जो बहुत सुंदर सेंटर बना देना, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अक्षरधाम का सुख लेते हो जाए और संदेशा फैलाने लगे। साधन से निर्वासनिक हुए हो तब भी वासना वाले हो जाओगे, अंदर बीज रूप वो फुटता ही रहेगा। निष्ठा वाला जो पेड़ जैसा होएगा, पर वो फिर भी वो प्रभु का है। गीता का दाखला आपको मालूम है संपूर्णपणे से। ये बात सुबह, दोपहर और सांझ हमें घुटनी है, मतलब कि रिपीट करनी है। दृढ़ हो जाए तो अन्य के ऊपर उसका पड़घा पड़ेगा। भगवान दास की बात से उसके मैनेजरों के भी उसको ऐसा होता था कि मेरे ये जो वाला जो बात करता है, और उसको तो हिम्मत आ जाती है। यदि ये निष्ठा हम ऐसा कहलाते हैं, निष्ठा वाले, ऐसा दृढ़ करना है। कोई हमें कह सके कि हमारी निष्ठा ऐसी है, उस तरह से हमें ये बात को दृढ़ कर लेनी है। और 5 मिनट इस जात का ध्यान कर लो। अभी काकाजी महाराज ने गणेशपुरी में ध्यान करवाया, पंचगिनी में भी ध्यान करवाया। तो ये ध्यान करवाया मतलब क्या कि हृदय कमल में विराजित ऐसे अखंड जो काकाजी महाराज और उसके माध्यम से जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान जो हमारे हृदय कमल में बैठे हैं, उसका ही ध्यान की बात यहाँ पे हो रही है। अंतर्दृष्टि करने की बात हो रही है। जो बाहर मूर्ति है उसी मूर्ति को अंदर देखने की बात कर रही है। और उस तरह से 5 मिनट इस प्रकार का ध्यान कर लेना है। तो काकाजी महाराज कह रहे हैं 5 मिनट इस तरह से ध्यान करो। तो किस तरह से? तो कि मैं ब्रह्मरूप ऐसा प्रभु आपका दास, देह नहीं, इंद्रिय भी नहीं, अंतकरण भी नहीं, आंख भी नहीं, कान भी नहीं, नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, प्राणवायु पर चलने वाला एक मशीन है, मोटर है, जो प्रभु की है। प्रभु के लिए ही उसका उपयोग करना है। ठीक है, टेम्पररी व्यवस्था हम हमारे कुटुंब की करते हैं, पर आपका होकर आपके कायदे से हमें जीना है। मिलजुल कर ये उठाव लेना है। आपका अक्षर पुरुषोत्तम का जो संदेश है वो फैलाना है। भगवान प्रकट है, प्रकट ही रहने वाले हैं। प्रत्यक्ष करने की चाबी जो है वो आपको सीख लेनी। सूरत भाव से, प्रेम भाव से कार्य ले लो। सदा सुखिया बनो, उसके बगैर सुख शांति रहने वाली नहीं है। घर घर में होली तो सुलगी हुई है, और उसको समाने के लिए आपको यहाँ पे ही आना पड़ेगा। महापूजा कराने को आना पड़ेगा। आज हम महापूजा के समय में सबकी लिस्ट देखते हैं, तो मोस्टली जितने सीनियर हैं वो सबका नाम हम सुन सकते हैं कि महापूजा कराने के लिए तो आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वो अंगारा पकड़ा है, जिन्होंने वो अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना का ध्यान को पकड़ा है, उस मर्म को जिन्होंने पकड़ लिया है, तो अंदर से मलिनता भर भर के बाहर निकलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे एक एक दिन में एक एक कल्प जितना काम होता है, और उसके वजह से, उस मलिनता के वजह से ही हमारे देह के अंदर रोग प्रतीत होते हैं।
हम रोगी है ही नहीं, पर वो जो मलबा अंदर पड़ा है वो जब बाहर निकलता है तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है, और उस प्रभाव के वजह से हमें क्या लगता है कि हम बीमार हैं, हम शक्तिहीन हैं, हमें अच्छा महसूस नहीं होता। पर वो क्या है? वो प्रभाव है, काल, कर्म और माया का प्रभाव है, जिसके वजह से हमारे मन बुद्धि को ऐसा प्रतीत हो जाता है कि हम बीमार हैं। पर ऐसा है नहीं। हम कैसा है? महानंद के स्वरूप है, हमारे पास में भगवान की मूर्ति है, और उनको प्रत्यक्ष करने को हमें सीख लेना है। तो आपके प्रारब्ध को निकालने के लिए कैंसर जैसा रोग भी हो जाएगा, वो एक राजीपा है शुद्धिकरण का। देखो, जो मैंने लास्ट टाइम ही बात की थी कि बीमारी आई तो समझो मलबा निकल रहा है। मलबा निकल रहा है तो फायदा किसका है? वो जन्म जन्मांतर का मलबा जो कारण शरीर के अंदर वासना रूप में पड़ा है, और जब वो निकलेगा तो रोग बन के ही निकलेगा। और जब वो निकल रहा है तो हाहाकार करने के बजाय यदि हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, हम उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, हम उनको धन्यवाद देंगे और खुश होएंगे कि हाँ महाराज हमारे ऊपर कार्य कर रहे हैं और मुझे आध्यात्मिक कल्याण की दिशा में आगे प्रशस्त कर रहे हैं, तो हम राजी होंगे, नहीं कि हम दुखी होंगे। तो ये बात है, वही बात यहाँ पे काका जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि कैंसर जैसा रोग भी आपको हो जाएगा, और वो एक राजीपा है शुद्धिकरण का, पवित्रता का। मूर्ति धारण करने के लिए चिंतामणि रूपी मूर्ति मिली है, वो सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। जिस तरह से आप चिंतन करोगे उस प्रकार से आपको मिलेगी। मूर्ति को भूलना नहीं, क्योंकि जानपना आप भूलते नहीं हो। दो चीज है, मेरे चेतन में प्रभु अखंड है। वो प्रभु कैसे है? तो अन्य जो ऐसे हल्के फुल्के विचार है वो सदंतर बंद। 5 मिनट इतनी बात दृढ़ता से करो, और तत्पश्चात हम 2-3 अनुभव दर्शन भी सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हुई? जो लास्ट टाइम मैंने अनायासी कह दी थी, वही बात यहाँ पे काका जी महाराज कहते हैं, और तत्व से कहते हैं कि ये तो राजीपा है शुद्धिकरण का, पवित्रता का, और ये मूर्ति धारण करने का, और चिंतामणि रूपी जब मिली है तो हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। हमने कभी न कभी जाने या अनजाने में ये ऑर्डर, ये जो प्रार्थना है और उनके चरणों में रख दी है कि इसी जन्म में पूरा करा दो, हमें पूर्ण काम हो जाना है, अब सीधे अक्षरधाम में जाना है, तो उसके लायक बना दो। जब प्रार्थना करते हैं तो उसका परिणाम मिलता है, क्योंकि वो चिंतामणि है, वो हृदय में ही बैठे हैं, वो हमारी हर प्रत्येक क्षण क्षण की बातें सुनते हैं, और जब परिणाम देते हैं तो हम हाहाकार करते हैं। तो धन्यवाद निकले, हाहाकार नहीं, धीरज निकले। बल चाहिए तो बल मिलेगा, बल के लिए पुकारो। शक्ति चाहिए तो शक्ति मिलेगी, शक्ति के लिए पुकारो। मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन मिलेगा, पर मार्गदर्शन के लिए पुकारो। पर हाहाकार मत करो कि महाराज मेरा तो कुछ नहीं करते, मैं तो इतने साल से बीमार हूँ और मैं तो वैसी की वैसी पड़ी हूँ। वो बात नहीं, निकाल रहे हैं हर दिन में एक एक कल्प का, कई जन्म जन्मांतर का निकाल रहे हैं, तो उसकी पवित्रता को स्वीकार करो, और जो चिंतामणि रूपी मूर्ति मिली है उसका धन्यवाद करो। और उसके लिए कहते हैं कि हम आगे 2-3 अनुभव दर्शन सुनते हैं। इसी के साथ में प्रकरण 3 की बात यहाँ पे पूर्ण होती है, और हम आगे बढ़ रहे हैं प्रवचन 4 की ओर।